Assalamualaikum. My name is Nurul Ann, and today I'm going to discuss about the percussion of precardium. So first of all, I'll tell you about the examination of precardium. Examination of precardiums includes 4 steps: the inspection, palpation, percussion, and the last one is auscultation. But today I'll only discuss about the percussion. What is percussion? Percussion is basically a process or a technique that will be performed by our doctors or physicians by using their both hands to tap by the fingers on the patient body. As you can see in that diagram, the doctor is basically performing percussion on the patient body to check is there any cardiac pathologic conditions are present or not. But nowadays, this technique is quite less uncommon. So the question is this, that why this technique is not useful in nowadays. Basically, in our past history, the cardiac percussion was very useful technique to identify the heart diseases. But now this procedure will be replaced by our x-rays and echocardiography. Why we are using x-rays and echocardiography? Because they will tell us the accurate cardiac size, borders, and many more conditions. But nowadays we will also perform the percussion of precardium in the case of emergency. Emergency के केस में हम जो हार्ट की percussion है वो करते हैं to check our quick results at the bedside point. Next one is identification. This is our pathologic condition. In condition में हम लोग जो है वो percussion करते हैं heart की. So basically the first one is cardiomegaly. Cardiomegaly जो है वो एक abnormal enlargement है heart की. Heart जो है वो हमारा swell up हो जाता है. Second one was pericardial effusion. Pericardial effusion इज अ डेट कंडीशन. हमारी हार्ट के सराउंडिंग्स में लेयर्स हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है. जब उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, सो दैट वाज द कंडीशन इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. The third one is pulmonary artery dilation. It is basically a rare congenital disease. The last one is dilated cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy के अंदर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो कि मेन पंपिंग चैम्बर है, उसकी डायलेशन हो जाती है, वो मतलब खुल जाता है और उसकी वजह से जो है वो हार्ट जो सही से पंप नहीं करता ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी. सो दीज आर द पैथोलॉजिक कंडीशन. इन कंडीशंस के अंदर हम लोग जो है परकशन करते हैं. ओके, द सेकंड वन इज टेक्निक एंड रूल्स ऑफ परकशन. अब क्या तरीका है जिससे हम लोग परकशन करते हैं? As you can see in that diagram, the both hands were involved. First of all, we will place our non-dominant hand. Our non-dominant hand is basically our left hand. As you can see, this is our left hand, जो कि non-dominant hand है. उसकी middle finger पे हमारा focus होना चाहिए क्योंकि हमने percussion वहीं से ही करनी है. Now, second point हमारा ये कि हमने इस जो point है ना, जो ये आपको नजर आ रहा है arrow वाला point, इसको हम कहते हैं our pleximeter. सेकेंड हम लोग हैंड यूज करेंगे हमारा डोमिनेंट हैंड. राइट हैंड हमारा डोमिनेंट हैंड है, उसकी भी हम लोग मिडिल फिंगर को यूज करेंगे. एज यू कैन सी दैट वाज आवर मिडिल फिंगर. इसको यूज करेंगे ऑन दैट पिन पॉइंट. ओके, अब हम लोगों ने इससे जो है इसके ऊपर हिट करना है. हम लोगों ने DIP एंड PAP ज्वाइंट के इन बिटवीन, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, इसके दरमियान हमने हमारे जो प्लेक्सर है, जो प्लेक्सर हमारा नो और प्लेक्सर जो हमारा वो डोमिनेंट हैंड का जो प्लेक्सर है, उसने नॉन डोमिनेंट हैंड के DIP PAP ज्वाइंट के दरमियान में, मिडिल फिंगर के दरमियान में हिट करना है. इन सिंपल वर्ड्स, प्लेक्सर विल हिट द प्लेक्सीमीटर. प्लेक्सर विल हिट द प्लेक्सीमीटर. ओके, अब प्लेक्सर ने जो है हिट करना है प्लेक्सीमीटर पे विद द फोर्स ऑफ रिस्ट ज्वाइंट. इस ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट की वजह से, इसके फोर्स की वजह से हिट करना है, नॉट फ्रॉम द एल्बो एंड नॉट फ्रॉम द शोल्डर. उससे हिट नहीं करना. ओके, अब हम लोगों ने हिट करना है एंड हिट करने के बाद सिर्फ ट्वाइस अ टाइम हिट करना है एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने दोबारा चल जाना है. एज यू कैन सी इन दैट डायग्राम,
हार्ट के बॉर्डर्स मेजर कर लिए गए हैं, प्रिकस कर लिए गए हैं और उसके बाद उसको मार्क किया जा रहा है. Now, the site of percussion. Site of percussion is basically different on the both borders, right borders and the left border. Right border के लिए हम लोग percuss करते हैं from the second to fourth or maybe at the fifth intercostal spaces. Okay, अब कहाँ पे करनी है? As you can see, यहाँ पे हमारी clavicle पड़ी होती है. Clavicle के mid में एक line हम draw करते हैं, मतलब our imaginary line है mid clavicular line. उधर से हम लोगों ने इसकी सेकेंड से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेसिस तक प्रिकस करना है. प्रिकशन का स्टेप आपको बता दिया है. प्रिकस करना है फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल, लेटरल टू द मीडियल. ओके, इस जहाँ पे कार्डिक हमारा हार्ट प्रेजेंट है वहां पे हमें डलनेस वाली साउंड मिलेगी. फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट द डलनेस साउंड एज वेल. वहां पे हम लोगों को डलनेस साउंड मिलेगी और ये ज्यादातर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेसिस पे होती है. अगेन द साइट ऑफ प्रिकशन. पहले हम लोगों ने राइट बॉर्डर की बात की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेफ्ट बॉर्डर. लेफ्ट बॉर्डर पे हम लोग प्रिकस करेंगे फ्रॉम द थर्ड टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस. अगेन फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल एज वी विल डन इन द प्रीवियस. नेक्स्ट इज द बेसिकली कार्डिक प्रिकशन जो है वो जो नॉर्मल है वो ऑफ कोर्स वो डलनेस ही जो है वो प्रोनाउंस डलनेस ही जो है वो प्रोड्यूस करेगी साउंड. अगर तो है कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन है लाइक आई डिस्कस लेटर जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस की है कार्डियोमेगैली या फिर कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन है उससे जो हार्ट स्वेल हो गया तो इस बॉर्डर से ऊपर हार्ट की जो है वो प्रिकशन हमें सुनाई देगी, डलनेस सुनाई देगी इस बॉर्डर से ऊपर. और इससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स कोई पैथोलॉजी कंडीशन है. The last one is basically types of percussion known. जब आप percussion कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि types of percussion node क्या है. Otherwise आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये normal sound है या फिर ये pathologic sound है. So there would be a dull note. Dull note always present under the solid organ. Solid organ जहाँ पे present होंगे वहाँ पे आपको dull note सुनाई देगी. Like over heart वाली जगह पे और लिवर की जगह पे जो हमें डल नोट सुनाई देता है. impaired note will be present on the borders of the solid organ. solid organs के borders पे present होती है. as you can see in that light color, these are basically impaired note. यहाँ पे आपको impaired note सुनाई देगी. the flat one was that is present in between the bones के अंदर. जब आप बोन्स को प्रिकस करेंगे वैसे तो आपने इंटरकोस्टल स्पेस में करना है. अगर आप प्रिकस करें बोन पे तो वहाँ पे आपको फ्लैट जो है वो नोट मिलेगा. एंड टिम्पैनिसिटी इज बेसिकली ऑन द एम्प्टी स्टमक पे हम लोगों को मिलती है ये नोट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड. थैंक यू.